Hi guys, welcome back to 12 Minutes to CLAT. I'm Keshav Malpani with episode 4 in Law of Constitution. So we've already discussed the major two fundamental rights from Article 14 till Article 22. वो हमने already अभी discuss कर लिया है. Fundamental right का जो पूरा section है वो 12 से start होता है. But fundamental rights actually start from Article 14. We also discussed that the most used fundamental rights of the Constitution are Article 14, 19 and 21, which is also called the Golden Triangle of the Indian Constitution. In this session, we'll move further ahead and we'll discuss three more fundamental rights, which is right against exploitation, right to freedom of religion, as well as cultural and educational rights. Now, these three rights also hold a lot of importance, particularly when it comes to any kind of, जैसे अगर हम exploitation की बात करें, so exploitation काफी तरह के होते हैं. अगर मान लो आपसे कोई child labor करा रहा है, that is exploitation. Human trafficking is exploitation, है ना? आपसे कोई free में काम करा रहा है, आपको कम पैसे दे रहा है. All of that is exploitation, right? So there are exploitation of different kinds. We all know that India is a secular country, so we are a Hindu majority country, but despite that we do not have a state religion, right? So we become a secular country. उसके अलावा कई सारे cultural educational rights हैं जिसके हम बात करेंगे in this particular session. Follow me till the end. These are quite basic and simple to understand, but please make good notes so that you don't have to watch this again and again और अपने notes से properly उसको पढ़ सको. उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ that we have started a new app. You can download this app on your smartphones and you can actually use a lot of courses that we are creating for you and we would be creating in future as well. तो आपको काफी ज्यादा help मिल सकती है इन courses से. That will give you good understanding about all the exams that you want to write, or you could say concepts, practice and everything that you need at one place. You can also follow our website which is 12minutestoclat.com. उसमें भी आपको ये same content वहां भी available हो जाएगा, तो आप इसको download कर सकते हो and definitely take advantage of this CLAT revolution, which is the legal revolution that we're trying to create for all of you. Chalo, moving further with this. So the first article is Article 23 for today. Article 23 or 24 talks about right against exploitation. Right, ये दो आर्टिकल्स हैं जो मेजरली इसके बारे में बात करते हैं, विच इज 23 एंड 24. अब 23 और 24 are quite different than other fundamental rights in the sense that we had studied initially that fundamental rights are only applicable or enforceable against a state. Private individuals or private authorities के against it's not enforceable. Now this is an exception to that. Article 23 and 24, any kind of exploitation is also enforceable against a private individual or a private authority. So if a private company is hiring you and not giving you the minimum pace or the minimum wage that the government has actually decided, the base पे जिसको हम बोलते हैं, that particular private organization can also be held liable, right? तो यहाँ पर आर्टिकल 23 बात करता है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फोर्स, पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, विच इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर. ये दो मेजर टाइप के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग मींस खरीदना बेचना लोगों को, ओके, सेलिंग और बाइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस, राइट? तो ये काफी ज्यादा बार देखा है. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन सर्टेन वेरी छोटे छोटे बैगर्स जो आपको कई कई फुटपाथ पर या फिर कई ट्रैफिक सिग्नल पर मिल जाते हैं, राइट? तो ऑल ऑफ देम, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम आर एक्सप्लॉइटेड. ठीक है, उनको कहीं से लाया जाता है, उनको कहीं से ट्रैफिक किया जाता है अलग अलग जगहों से और उनसे फिर भीख मंगवाई जाती है, राइट? अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर पुश्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन from a very young age and that is all a result of human trafficking in India, which is quite rampant. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो you can be held liable under obviously a lot of laws. मैं आपको बताऊंगा कि इस आर्टिकल के अंदर काफी सारी लॉज बनाई है गवर्नमेंट ने, but also a fundamental right that you have is violated, so you can definitely file a writ petition also. Writ petition क्या होता है ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, right? So article 23 again, sorry, article 23 की खास बात ये है कि it is applicable not just against the state. ठीक है, ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट एप्लीकेबल नहीं है, इट इज एप्लीकेबल अगेंस्ट ऑल इंडिविजुअल्स एंड ऑल प्राइवेट एंटिटीज एज वेल. तो ये सबके अगेंस्ट एप्लीकेबल है, राइट? तो किसी भी तरीके का फोर्स लेबर, एक देखो एक तरीके का फोर्स लेबर होता है इसको हम बोलते हैं बेगार. बेगर का मतलब है फ्री में काम करा लेना, ठीक है, विदाउट गिविंग यू सिंगल पेनी. दिस इज नॉट बेगर, दिस इज बेगार, राइट? दिस इज फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑल ऑफ दिस इज कवर्ड इनटू दिस. इसके अंडर गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी मेड सर्टेन लॉज, बट पहले मैं आपको बताया था कि आर्टिकल 23 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. आई मीन दो सब आर्टिकल्स हैं इसके. So the first sub article talks about the exact thing that I told you right now. And let's quickly read this. It says trafficking in human beings and beggar and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be punishable according to a law. तो वो law क्या है वो आप डिस्कस करेंगे. लेकिन गवर्नमेंट has also made an exception in this.
अब जैसे कई बार क्या होता है, देयर आर सर्टेन पब्लिक इमरजेंसी, है ना, जहां पर लोगों की जरूरत है ऑल्दो वो उस फील्ड को बिलोंग नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड की बात ले लेते हैं, ठीक है। कोविड-19 में क्या हुआ था, द एंटायर कंट्री हैड टू बी वैक्सीनेटेड, है ना। वी आर मोर देन 120-125 करोड़ पीपल। इतने सारे लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए ओनली द हॉस्पिटल्स कुड नॉट हैव बीन इनफ। So you would have seen that certain schools and various other places became COVID vaccine booths। ठीक है, वो कोविड वैक्सीन बूथ बन गए थे सारे के सारे। अब कोविड वैक्सीन बूथ वो बन गए थे, तो सारे जो टीचर्स थे जिनका लेना देना कुछ भी नहीं है कोविड से या कोविड की कुछ भी प्रिकॉशन से या एक तरह से मान लो हेल्थ सेक्टर से, बट दे वर गिवन द ड्यूटी टू मेक श्योर कि भाई आप लोग लोगों को प्रॉपर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट करवा रहे हो, मतलब ओवरसी करने का काम उनको दिया गया था, राइट। तो यहाँ पर कैन दे कम एंड से दैट द गवर्नमेंट इज एक्सप्लॉइटिंग अस, हमारा जो काम ही नहीं है वो सरकार हमसे करा रही है? द आंसर टू दैट इज नो, एंड दैट इज गिवन इन आर्टिकल 23 क्लॉज 2। इसका ये इसमें लिखा है कि इस आर्टिकल में नथिंग कैन प्रिवेंट द स्टेट, स्टेट यहाँ पर गवर्नमेंट हो गया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। And I don't think anybody watching this can deny that COVID-19 was a huge public purpose, right? It was a public purpose. तो यहाँ पर फॉर एनी पब्लिक पर्पज आप पर कंपलसरी सर्विस लगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई कंपलसरी सर्विस लगा रहा है ना, सो कंपलसरी सर्विस के केस में इट इज नॉट द गवर्नमेंट प्रेरोगेटिव टू गिव एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, गवर्नमेंट कांट डू दैट। तो यहाँ पर साफ साफ है कि नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। आप इनके बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी भाई पर्टिकुलर एक रिलीजन के लोगों को ले गए कि आप कोविड का वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट करो और एक रिलीजन को एक्सक्लूड कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पर 23 क्लॉज 2 इज वेरी क्लियर, गवर्नमेंट समटाइम्स कैन इन पब्लिक इमरजेंसीज डू दैट। आप देखो कि कई सारी कंट्रीज में ऐसा होता है इवन विदाउट पब्लिक इमरजेंसीज, वेयर पीपल बिफोर दे रीच अ सर्टेन एज दे आर रिक्वायर्ड टू सर्व इन द आर्मी। 1 या 2 साल उन्हें आर्मी में काम करना पड़ता है, ये होता है जनरली काफी, राइट। तो इस पर काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि गौर किया जा सकता है, बट इंडिया में वो सिर्फ पब्लिक इमरजेंसीज में होता है, किसी पब्लिक पर्पस के लिए होता है। तो इंडिया में भी आर्मी में बुला सकते हैं अगर आगे जरूरत पड़ी, ऑल्दो हमारे देश को इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट दिस इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। अब मेजर एक्ट्स कौन से, व्हाट आर द मेजर लॉज जो इसके अंडर गवर्नमेंट ने इनेक्ट करे? देयर आर सेवरल लॉज, 2 मेजर हैं। पहला नाम से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। फर्स्ट इज सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट। क्यों है ये? ट्रैफिकिंग को सप्रेस करने के लिए इन वुमेन एंड गर्ल्स, सिंपल, राइट। सेकंड इज बॉन्डेड लेबर सिस्टम। बॉन्डेड लेबर इन हिंदी इज कॉल्ड बंधुआ मजदूर। किसी से जबरदस्ती उसको पकड़ के उससे काम करा लेना, उसको पैसे ना देना या इतने कम पैसे देना जिससे वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। बेसिकली जो गवर्नमेंट सेट मिनिमम वेज रेट्स आर नॉट गिवन टू दीस पीपल, सो दीस पीपल आर बॉन्डेड लेबर्स। तो बॉन्डेड लेबर का अबॉलिशन एक्ट है ये 1976 का। इसके अलावा कई सारे एक्ट्स हैं व्हिच इज नॉट रेलेवेंट फॉर आवर पर्पस राइट नाउ, बट ये 2 एक्ट्स आपको आने चाहिए। सो 23 मेजरली किस बारे में बात करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज वेल एज फोर्स लेबर और बॉन्डेड लेबर। आगे जब 24 की हम बात करेंगे तो 24 एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है व्हिच इज चाइल्ड लेबर। और चाइल्ड लेबर आई थिंक इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडिया। सो द वे दिस आर्टिकल इज ड्राफ्टेड वो थोड़ा पुराने तरह से ड्राफ्टेड था और उसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन था व्हिच आई डिस्कस राइट नाउ, बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस आर्टिकल सेज फर्स्ट। इट सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed in any factory or mine or engage in any hazardous employment. Now this says in very simple language कि 14 साल से छोटा बच्चा कोई भी hazardous काम नहीं कर सकता। अब now what is a hazardous employment? For example, say cracker factories, bangle factories, ठीक है, these kind of chemical factories, mines. So these are certain employment which are hazardous in nature. It can have a negative impact on the child's health also. But my question here is, जैसे इंडिया में we also know that there's a law which is right to education. राइट टू एजुकेशन बोलता है that every child in India shall compulsorily between 6 to 14 years of age go to school। 6 से 14 साल का बच्चा स्कूल जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि 14 साल से छोटा बच्चा हजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता। इसका मतलब वो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। अगर उसको किसी ढाबे पे रख रखा है किसी ने, तो दैट पर्सन कैन वर्क ऑन दैट ढाबा और दैट रेस्टोरेंट। बट फिर वो अगर ऐसा करेगा तो फिर वो स्कूल कब जाएगा? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया? तो इसीलिए इस पर्टिकुलर चीज को एक लॉ लाकर चेंज किया गया था, ठीक है। यहाँ पर लॉ वाज ब्रॉट व्हिच इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ओके। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, इसको कई बार अमेंड किया गया एंड द लेटेस्ट अमेंडमेंट ब्रॉट दिस। मैं आपको प्रेजेंट सिनेरियो बता देता हूँ कि अभी इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपका इफ योर चाइल्ड इज लेस देन 14 years of एज, ठीक है, सॉरी
If a child is less than 14 years of age, then this child cannot work at all. है ना? This child cannot work, this child has to study. Secondly, if your child is 14 to 18 years of age, this person cannot work in hazardous employment. Hazardous employment is prohibited. और 18 से ऊपर का तो काम कर ही सकता है, तो ये अभी प्रेजेंट लॉ है. बट देन यू वुड सी सर्टेन चाइल्ड आर्टिस्ट, है ना? आपने कई सारी मूवीज देखी होगी जहाँ पे कोई 10 साल का, 8 साल का, 6 साल का बच्चा काम कर रहा है. So how is that happening when a child, somebody like this cannot work at all? So these are certain exceptions that are carved out. For example, if your work is an artist for a movie, if you're into music, if you're into sports, these are certain things that is not considered work per se. है ना? उनको कहा जाता है कि that is a performance of an artist. क्योंकि अगर हम 14 साल से पहले बच्चे को परफॉर्म ही नहीं करने देंगे तो दैट चाइल्ड वुड नेवर डेवलप, राइट? तो इसीलिए यहां पर ये चीजें अलाउ कर दी जाती है, बट विद द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स. द पेरेंट्स शैल एग्री टू द सेम, राइट? तो यहां पर दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड चाइल्ड लेबर. अगेन वी हैव टू यूज आवर माइंड व्हेन वी यूज दिस टर्म चाइल्ड लेबर. एवरीथिंग इज नॉट चाइल्ड लेबर. आज आप घर जाकर बोल दो कि मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगा आज से बिकॉज दिस इज चाइल्ड लेबर, राइट? नो, एवरीथिंग इज नॉट चाइल्ड लेबर. ठीक है, अपने घर का चोर्स करना इज नॉट चाइल्ड लेबर. अपने घर की दुकान पर थोड़ी देर जाकर बैठ जाना इज नॉट चाइल्ड लेबर, राइट? तो चाइल्ड लेबर की अलग कैटेगरीज होती है कुछ कुछ, वेयर काफी सीरियस वो होता है कि हम देखते हैं ना कई बार बहुत छोटे छोटे बच्चों को एम्प्लॉय कर लिया जाता है. 14 साल से छोटा बच्चा रेस्टोरेंट में टेबल साफ कर रहा होता है, खाना सर्व कर रहा होता है. दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट अलाउड. सो इफ इट इज डन, इट्स रफली 2 years का आपको जेल होता है. ठीक है, मतलब पहले 6 महीने शुरू होता है और फिर वो 2 साल तक जा सकता है. तो मैंने आपको बताया employed in certain family occupations and as artists, this is allowed. ठीक है, this act allows children to be employed in these kinds of occupations. That is not an issue. That is not prohibited under this law. I hope this is clear. So this is right against exploitation. आपने अपने सारे राइट टू पढ़े थे ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, आगे भी जाके पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ये एक राइट है, इसको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं. और इसकी यूनिक बात ये है, इट इज आल्सो एप्लीकेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट अथॉरिटीज एज वेल, राइट? Now moving on to the next part, which is right to religion. अब religion ना इंडिया के लिए बहुत ही sensitive matter है, right? You would see that everything it's so political that everybody is talking about religion, है ना? हर इंसान इंडिया में हिंदू मुस्लिम कर रहा है. तो religion एक बहुत sensitive matter है. At the same time, it's a very important legal matter because religion से हम लोग इतने closely attached हैं that we always want to promote our religion, है ना? चाहे वो कोई भी religion का इंसान हो, हम चाहते हैं कि we would like to promote our religion over other person's religion. So the constitution drafters realized that this could happen in future because Britishers had also done that divide and rule kind of a thing with Hindus and Muslims. The entire point of partition of India was this division of Hindus and Muslims, right? So yahan par the constitution framers realized that this is a problem and we need to figure this out. So what they did was, despite having a Hindu majority, they said that this is not a Hindu country or a Hindu state religion. We do not have a state religion. All the religions in this country, चाहे उसके कितने भी लोग रहते हो, are equal in the eyes of law. So you would never see the government discriminating you in anything with respect to your religion. They would never say कि भाई हिंदूज को पर्टिकुलर चीज मिलेगी, मुस्लिम्स को नहीं मिलेगी. It does not generally happen, है ना? कुछ छोटी मोटी एक आध चीजें जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल से अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी के जो लोग होते हैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के, वो मुस्लिम्स कैटेगरी, वो मुस्लिम नहीं हो सकते, है ना? वो कुछ अलग उसके हिस्टोरिकल रीजंस हैं, है ना? उसकी भी अलग लड़ाई चल रही है. बट देन मोस्टली यू वुड नॉट सी गवर्नमेंट डिवाइडिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन with respect to at least the legal work. आज कोई गवर्नमेंट की स्कीम आई, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लेट्स एग्जांपल. अब वो क्या करेगा भाई? थोड़ी बोलेगा कि हम सिर्फ हिंदूज को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, मुस्लिम्स को नहीं करेंगे. नहीं, एवरीबडी हु इज एलिजिबल विल बी प्रोवाइडेड 100 days of employment every year, है ना? तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम समझते हैं कि व्हाट डज दिस आर्टिकल और व्हाट डज दिस एंटायर राइट टू रिलीजन टॉक अबाउट. सो दिस रन्स फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28. ठीक है, इतना चलता है. लेट्स सी व्हाट इट इज. पहले आर्टिकल 25 पे आते हैं. आर्टिकल 25 कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं हमें कि इसको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है. सो आर्टिकल 25 सेज कि हर इंसान के पास, ठीक है, हर इंसान के पास एक फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट देयर रिलीजन है, राइट? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजंस. दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द वर्ल्ड एट लार्ज. ये इंडियन सिटीजंस को ये पूरा राइट टू रिलीजन एप्लीकेबल है. अब आप अपना रिलीजन इस देश में अपनी मर्जी से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? आपको जो करना है करो. आप अपने रिलीजन को प्रोपेगेट भी कर सकते हो. प्रोपेगेट मतलब कि मान लो फॉर एग्जांपल आई वांट टू डू अ रैली बेस्ड ऑन रिलीजन, आई कैन डू दैट एज लॉन्ग एज आई एम नॉट हर्टिंग सम अदर पर्सन्स रिलीजन. मैं उनके बारे में अनाप शनाप नहीं बोल रहा हूं उस रैली में, आई कैन डू दैट, राइट?
और मैं उसको प्रोफेस भी कर सकता हूँ, मतलब लोगों को अपने रिलीजन के बारे में बता सकता हूँ कि भाई मेरे रिलीजन में क्या खास बात है ना, व्हाई शुड यू बी इन दिस रिलीजन। इसका मतलब फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है। कई लोग उसको समझते हैं कि भाई फोर्स्ड आप कन्वर्ट भी कर सकते हो किसी को, नहीं। इसका सिंपल सा मतलब है अपने रिलीजन के बारे में अच्छी बातें बताना, आपकी प्रैक्टिसेस के बारे में बताना, बीइंग प्राउड ऑफ योर ओन रिलीजन एंड ऑब्वियसली टेलिंग पीपल अबाउट इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ओके, तो यहाँ पर दीज आर सब्जेक्ट टू, अगेन देयर आर सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। अगेन वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप किसी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई दंगे भड़क जाए। पब्लिक ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ गलत नहीं बोल सकते विच इज अगेंस्ट मॉरल्स, right? So we have to understand that when we propagate or profess our religion, it has to be reasonable. ऐसा नहीं अनाप शनाप कुछ भी बोल दिया, that cannot happen. Okay, next very important to understand कि यहाँ पर हम जब समझते हैं ना कि भाई हमारा राइट टू रिलीजन क्या है, जैसे देखो कोर्ट में बहुत सारे केसेस आते हैं और वो बोलते हैं कि आप है ना ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस कोर्ट बोलता है गलत है, तो वो आके बोलते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, वी हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सो वी आर प्रैक्टिसिंग दैट। Now, court considers a very important test or a very important principle to understand कि भाई क्या ये religion का part है, which and that test is called the essential practice in a religion. मतलब अगर कोई एक particular practice आपके religion के लिए बहुत जरूरी है, right, और वो फिर भी थोड़ा बहुत किसी के rights को infringe कर रही है, तो court generally allow करता है, court फिर personal laws में ज्यादा interfere नहीं करता है। जैसे let's take example of शायरा बानो के, शायरा बानो का ट्रिपल तलाक केस। ट्रिपल तलाक में क्या होता था, वेयर द हस्बैंड वाज गिवन द राइट टू से तलाक 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 टू वाइफ एट एन इंस्टेंस, एंड वो लाइक वो इररिवोकेबल तलाक हो जाया करता था, वाइफ कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। अभी कितनी अजीब बात है, राइट टू इक्वालिटी की भी अगेंस्ट है, एंड दिस इज सो डिस्क्रिमिनेटरी। सो देयरफॉर द कोर्ट सेड कि भाई ट्रिपल तलाक इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, ये इसको आप एसेंशियल प्रैक्टिस बोल के आगे नहीं बढ़ा सकते, एंड कोर्ट ने बाद में मना कर दिया, है ना। सो वी नो द शायरा बानो केस वेयर द कोर्ट सेड दैट ट्रिपल तलाक इज नॉट अलाउड नाउ, इंडिया विल नॉट अलाउ ट्रिपल तलाक। ओके, तो जैसे कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हिंदुइज्म में वर्शिपिंग ऑफ एन इमेज और एन आइडल, ऑल ऑफ अस वी व्हेन वी गो टू अ टेंपल, हम लोग किसी मूर्ति की हाथ ही जोड़ते हैं ना, सो दैट इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन, राइट। इस्लाम की बात करें तो ऑफरिंग प्रेयर्स एट अ पब्लिक मॉस्क, जनरली बोला जाता है ना कि भाई जो सच्चा मुसलमान है वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, या फिर वो कितनी बार भी पढ़े, तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है उनके रिलीजन का कि पब्लिक मॉस्क में जाकर वो नमाज पढ़ेंगे। अब कुछ कुछ केसेस ऐसे आए हैं कोर्ट में जहां पर कोर्ट ने कहा है कि नहीं, दिस इज नॉट रेलेवेंट, दिस इज नॉट एसेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्रीफाइस ऑफ अ काउ इन मुस्लिम रिलीजन, नो नॉट एट ऑल, लाइक इससे कोई रिलीजन का पार्ट नहीं हुआ, ठीक है। अ हिंदू मेल मैरिंग अ सेकंड वाइफ आफ्टर कन्वर्जन इनटू इस्लाम, सो वी नो दैट इन इस्लाम यू आर अलाउड टू मैरी अप टू 4 टाइम्स, ठीक है, उससे ज्यादा भी कर सकते हो, बट 4 बार तो बाय लॉ अलाउड है आपको, राइट। हिंदुइज्म में ओनली वंस इट इज अलाउड, तो कई लोग क्या करते हैं, दे मैरी वंस इन देयर ओन रिलीजन and then they convert to Islam to marry again. That is not allowed. That is not an essential practice. ठीक है, वैसा नहीं कर सकती कि अब तुम्हें रिलीजन चेंज कर लिया, तुम्हें मुस्लिम हो गया तो मेरी मतलब यू नो सेकंड शादी इज आल्सो वैलिड, राइट। अगेन कई बार अब एक इलेक्शन में क्या हुआ था, फॉर एग्जांपल देयर वाज अ वुमन हु वाज वेयरिंग अ बुर्का। अब इलेक्शन में जनरली ऐसे देखते हैं ना कि भाई आपका जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, जो आपका इलेक्शन वाला वोटिंग कार्ड है, उससे आपका चेहरा मैच हो रहा है नहीं हो रहा। दिस पर्टिकुलर लेडी सेड कि मैं अपना बुर्का ऊपर नहीं करूंगी बिकॉज बुर्का इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर रिलीजन एंड आई विल नॉट, यू कुड से, वेरीफाई दैट। वहां पर कोर्ट ने कहा कि ये कोई एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है ना। यहाँ पर द एंटायर पॉइंट ऑफ आस्किंग यू टू रिमूव योर बुर्का ओवर योर हेड एक बार, व्हाई, बिकॉज दे वांट टू वेरीफाई इट एंड दैट वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो 50 बार कोई एक ही आदमी आ जाएगा वोट देने, राइट। तो इन चीजों को एसेंशियल नहीं माना गया है, बट सर्टेन प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। और क्या एसेंशियल है क्या एसेंशियल नहीं है, दैट इज वेरी केस टू केस। जैसे कई बार बोला गया है जो आप कहते हो कि जो मस्जिदों में जो आजान पढ़ी जाती है, कई बार वो लाउड स्पीकर से पढ़ी जाती है। मंदिरों में कभी कभी आरती होती है तो वो कई बार लाउड स्पीकर से होती है। लाउड स्पीकर चलाना कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है किसी भी रिलीजन का। तो दोनों ही केसेस में कई बार अलग अलग हाईकोर्ट्स ने मना किया हुआ है। तो इफ इट इज हैपनिंग इन योर एरिया यू कैन डेफिनेटली टेक एक्शन अगेंस्ट इट कि भाई दिस इज रियली डिस्टर्बिंग अस, है ना। तो अभी भी कई बार इंडिया में कई जगहों पर ऐसा होता ही है। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, विच इज 26। आर्टिकल 26 बात करते हैं अबाउट इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर्टीज एंड हाउ टू मैनेज योर ओन रिलीजियस अफेयर्स। तो देखो इसमें ना कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ चीजें दे रखी है। बोलते हैं कि एज इन द नेम ऑफ रिलीजन यू हैव टू राइट टू फॉर्म एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंटरेस्ट। हम देखते हैं ना कितने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं रिलीजन के नाम पे, अलग अलग रिलीजन्स में होते हैं, राइट। तो वही अलाउ करता है। यू कैन ऑलवेज मैनेज योर ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन, ठीक है। आप अपना हिसाब से अपना काम कर सकते हो कि कैसे उसको आगे बढ़ाना है,
आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो इन द नेम ऑफ रिलीजन। जैसे आज यू वांट टू क्रिएट अ टेम्पल, एक ट्रस्ट को एक टेम्पल बनाना है, राइट? और वो टेम्पल के लिए एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, दे बॉट अ प्लॉट and they would build a temple on that. That they can do. They have a right to do that, right? And they can also administer such property according to law. मतलब if they want to sell it, lease it, है ना, तो किसी भी लॉ के अंडर जाकर they can do something like this. इसको कोई भी नहीं रोक सकता, है ना? So they have the right. They have been given certain rights like this, and that can happen. Okay. So this is Article 26. Article 27 बात करता है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ राइट में टैक्सेस नहीं ले सकते आप किसी रिलीजन के नाम पे। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले इसको पढ़ते हैं क्या है। ये कह रहा है देयर कैन बी नो टैक्सेस द प्रोसीड्स ऑफ विच, मतलब जिसका जो पैसा है विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। अब जैसे मान लो उत्तराखंड की बात करते हैं ना, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या होता है, देयर आर 4 धाम, है ना, हिंदुइज्म के 4 धाम है और भी कई सारे तीर्थ स्थल है वहां पे। तो लेट्स से वहां पर जो क्राउड आता है वो 90 to 95% हिंदूज का आता है, राइट? अब गवर्नमेंट एक टैक्स लगा रही है, हिंदू पिलग्रिमेज टैक्स, कि भाई हिंदू पिलग्रिमेजेस की अपकीप के लिए और बाकी चीजों के लिए टैक्स लगा दिया। गवर्नमेंट कांट डू दैट बिकॉज दिस टैक्स कैन नॉट बी बेस्ड ऑन अ रिलीजन। रिलीजन के बेसिस पर कभी आप कोई टैक्स लगा सकते हैं। आप कभी भी देश में नहीं देखोगे कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन करने के लिए या किसी रिलीजियस साइट को मेंटेन करने के लिए सब पर टैक्स लगा दिया, नहीं। मतलब उस मंदिर में घुसने के लिए आप फीस लगा सकते हो, जो अंदर जाएगा वो फीस देके जाएगा, है ना, वो एक छोटा सा जो 20-30 रुपए जो भी फीस होता है वो लगा सकते हो। लेकिन ये नहीं कि अब स्टेट में एंटर करते टैक्स देना पड़ेगा भाई इतना, चाहे आप वहां जा रहे नहीं जा रहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? दैट इज नॉट अलाउड। उसके अलावा वी हैव आर्टिकल 28। आपने कई सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी देखे होंगे, राइट? तो यहाँ पर ये बोलता है कि नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, shall be provided in state no religious instruction shall be provided in state run educational institutions. See, आपने कभी भी किसी सरकारी स्कूल में ये नहीं देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी मतलब सिर्फ और सिर्फ वहां पर हिंदी, तो क्या मतलब हिंदुइज्म की चीजों को प्रमोट किया जा रहा है या इस्लाम की चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, राइट? यू विल नॉट से कि वहां पर सिर्फ एक मंदिर बनाकर छोड़ दिया अच्छा सा। कभी भी आप जैसे आगे एनएलयू जाना है आप लोगों को, तो एनएलयूज में आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि एक मंदिर बना हुआ है बड़ा सा और कुछ भी नहीं बना हुआ, वहां पर कुछ भी नहीं होता, है ना? क्योंकि आपको अगर मंदिर बनाना है तो फिर यू हैव टू क्रिएट अ मॉस्क आल्सो, हैव टू क्रिएट चर्च आल्सो। सब कोई आके बोलेगा कि गुरुद्वारा भी होना चाहिए, है ना? तो जो जो भी आपका मतलब एक तरह से अपना फेद है वो सब कुछ होना चाहिए। तो और किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं है कि भाई आज से हम सिर्फ हिंदुइज्म के बारे में पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता, राइट? ऑल द रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड इक्वली एंड दे आर टू बी रिस्पेक्टेड इक्वली एज पर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। कई बार ऐसा होता है कुछ कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट रन कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल administered by state but that were established under endowment or trust that requires religious instruction shall be imparted in such institution are exempt from above clause. अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो पर्टिकुलर रिलीजन वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस जो सरकार के पैसे से नहीं बने, राइट, एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट वर एस्टैब्लिश्ड अंडर एंडाउमेंट और ट्रस्ट, मतलब उसको शायद बनाया सरकार ने बट पैसे सरकार ने नहीं दिए थे, है ना? एंडाउमेंट और ट्रस्ट जो मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आज कोई इस्लाम रिलीजन का कोई ट्रस्ट था, उसने कोई पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर स्कूल बनाया फॉर मुस्लिम किड्स फॉर इम्पार्टिंग कि कुरान पढ़ाएंगे इसमें, ओके, दैट कैन बी डन, ठीक है, उसको किया जा सकता है अगर वो स्टेट रन इंस्टीट्यूशन नहीं है। यहाँ पर कंट्रोल का बहुत महत्व है कि उसकी जो डे टू डे वर्किंग है, डे टू डे फंडिंग है, वो कौन कर रहा है। अगर वो स्टेट नहीं कर रहा है, द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दैट, then the government can't administer, government can't एक तरह से गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर सकती उसको चलाना कैसे, है ना? दैट्स नॉट समथिंग अलाउड। ओके, सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेट का अगर कंट्रोल है तो वो उस पर्टिकुलर जगह पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, बट अगर कोई भी प्राइवेट बॉडी है तो वहां पर दिया जाएगा। इसको हम और कल्चरल एजुकेशनल राइट में ठीक से समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगेन if any person who attends any educational institution recognized by the state, उनको आप रिक्वायर नहीं कर सकते कि वो किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का पार्ट बने। If they do not want to be a part of a particular religious institution, that's okay. I mean, there's a very famous case called Bijoy Emanuel, which is जहाँ इसमें क्या होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर जेहोवा विटनेस करके एक फेद है, उसके कुछ लोग होते हैं and they do not believe in the national anthem of India. Okay, अब now a lot of you would say कि भाई हम देश में रह रहे हैं तो नेशनल एंथम कैसे फॉलो नहीं कर रहे, चाहे कोई भी रिलीजन फॉलो कर रहे हो, बट उसमें ये कहा गया था कि आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। दे आर नॉट क्लियरली एक तरह से कह सकते हो इंसल्ट नहीं कर रहे, वो बस वो गा नहीं रहे उसको साथ में, है ना? तो उनको स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। दे वेंट टू द हाई कोर्ट, दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस दिस जजमेंट। तो आप किसी को जबरदस्ती नहीं करोगे कि अपने फेथ के अगेंस्ट जाकर कुछ करना है,
people shall have an autonomy in a democracy like ours. Now moving on to the last part today, which is Article 29 and Article 30. Article 29 basically talks about, मैं आपको आगे जाके डिस्कस करूंगा मेजरली, इट टॉक्स अबाउट कल्चरल राइट्स इन इंडिया, है ना. तो देखो नाम ही है, इट्स एक्चुअली कॉल्ड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, यहाँ पर उल्टा हो गया, इट्स कल्चरल एजुकेशनल राइट्स. ये खासकर बात करता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की. तो इट विल इवन कल्चरली एंड एजुकेशनली ये दोनों माइनॉरिटीज को प्रमोट करता है. इंडिया में कौन माइनॉरिटीज हैं? एवरीबडी अदर देन अ हिंदू इज अ माइनॉरिटी इन इंडिया, अगर रिलीजियस माइनॉरिटी की हम बात करें तो, राइट. माइनॉरिटी वैसे तो कई तरह से होती है, विद इन हिंदूज आल्सो वी हैव सर्टेन माइनॉरिटी, जैसे कि हम एससी एसटी की बात करें तो दीस पीपल आर कंसिडर्ड माइनॉरिटीज, है ना. लेकिन हिंदूज के अलावा सारे रिलीजन कंप्लीट माइनॉरिटी माने जाते हैं इंडिया में, बिकॉज हिंदू इज द डोमिनेंट रिलीजन. अब इसमें दो आर्टिकल एज यूजुअल. 29 बोलता है सारे सिटीजन, अगेन ओनली एप्लीकेबल टू सिटीजन, ऑल सिटीजन दैट रेजाइड इन इंडिया हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट, राइट, दे हैव अ राइट टू कंजर्व दैट कल्चर एंड लैंग्वेज. आज अगर मैं एक ऐसी लैंग्वेज बोलता हूं जिसको सिर्फ मेरे आसपास के 100 लोग बोलते हैं, मेरे लोकेलिटी के पूरे देश में सिर्फ 100 लोग, मेरे पास पूरा राइट है कि मैं वो लैंग्वेज बोल लूं, उसको बरकरार रखूं. सरकार मेरे को आज आके नहीं बोल सकती कि ये लैंग्वेज मत बोलो, 100 लोग ही बोलते हैं, समझ नहीं आ रही किसी को. गवर्नमेंट कांट से दैट. आई हैव द राइट टू से इट, आई विल से इट. तो ये मेरा माइनॉरिटी राइट है, ठीक है, कि मैं अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को हर तरह से प्रमोट कर पाऊं, या फिर एटलीस्ट कंजर्व तो कर पाऊं. ओके. स्टेट शैल आल्सो नॉट डिनाई एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय इट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड सो ऑन. और यहाँ पर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप बोलोगे कि सर कास्ट के बेसिस पे तो होता है, यहाँ पे अलग अलग रिजर्वेशन होता है, बट वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटीज, राइट. वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 16 एंड ऑल इज फाइन. यहाँ पर अगर एक नॉर्मल आप सर्कमस्टांस में हो तो आपको कभी भी रिलीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे, आप जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम माइनॉरिटी था, यू से रिलीजन बोल लो या कुछ भी कम्युनिटी बोल लो, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इस बारे में, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स हैं. जैसे आप इंडिया में पता है क्या होता है, इंडिया में अंडमान आइलैंड्स में आप देखो, देयर इज अ ट्राइब कॉल्ड ओंजे, ठीक है, शॉम्पेन्स, ऐसे अलग अलग ट्राइब है. बिल्कुल छोटी छोटी पॉपुलेशन रह गई है इनकी, मतलब मान लो हजार लोग ही रह गए होंगे शायद पूरी ट्राइब में, हो सकता है उससे भी कम हो. अब ये अंडमान आइलैंड के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर रहते हैं. गवर्नमेंट ने उन पॉइंट्स पर नॉर्मल लोगों को जाना अलाउ ही नहीं कर रखा, बिकॉज गवर्नमेंट वहां पर उनको प्रोटेक्ट करके रख रही है कि आपके एरिया में कोई नहीं आएगा. दीज आर प्रिमिटिव पीपल, है ना. वो अभी भी पुराने जमाने से ही रहते हैं, मतलब वो जानवर अभी भी मार के खाते हैं जो जंगल में होते हैं उसी को, है ना. वो अभी मछली पकड़ के खाते हैं, तो उनका अपना तरीका है, बिकॉज उनका कल्चर है, एंड दैट डज नॉट अलाइन विद आवर कल्चर, जो हम हमारे जो मेजोरिटी का कल्चर है. इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कल्चर गलत है. एवरी कल्चर हैज इक्वल पावर, एवरी कल्चर इज इक्वल इंपॉर्टेंस इन आवर कंट्री, राइट. तो यहाँ पर इनके कल्चर को ऐसा बनाया जाता है, एंड दिस राइट इज एब्सोल्यूट एंड देयर इज नो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. किसी भी रेस्ट्रिक्शन को आप फॉलो नहीं करोगे, जस्ट बिकॉज वो पर्टिकुलर माइनॉरिटी की कल्चर और लैंग्वेज को हमें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. देन कम्स आर्टिकल 30. आर्टिकल 30 को चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट्स बोलते हैं. हमने 28 में देखा होगा, हमने थोड़ी सी एजुकेशन की बात करी थी 28 में भी, राइट. यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, इट्स अगेन रिलेटेड टू दी माइनॉरिटीज. तो अगर आपने मदरसा सुना होगा ना, मदरसा होता है इस्लाम में, देयर आर मदरसा जहाँ पर कुछ कुरान वरान के बारे में पढ़ाया जाता है, राइट. तो यहाँ पर ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस. वो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने चॉइस का एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है. ऑल दीज माइनॉरिटीज हैव अ चॉइस. तो मदरसा इसके अंडर आ जाता है फिर, राइट. ऑल्सो स्टेट वाइल ग्रांटिंग एनी एजुकेशनल एंडिंग एड टू द एजुकेशन, मतलब जब सरकार पैसा देगी, सो इट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ यू कुड से कि वो माइनॉरिटी है, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज. तो सरकार कभी ऐसा नहीं कर सकती कि भाई ये तो माइनॉरिटी है, इनको हम पैसा नहीं देंगे, हम तो सिर्फ मेजॉरिटी को देंगे. दैट कैन नॉट बी डन. आपको बहुत ही ज्यादा प्रोपोर्शनेट होना पड़ेगा, आपको सबको ठीक से कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा इसके लिए, राइट. तो आर्टिकल 29 एंड 30 टॉक्स अबाउट कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया. आर्टिकल 25 to 28 टॉक अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. वी आर नॉट अ कंट्री विच फॉलोज अ पर्टिकुलर रिलीजन, वी आर अ सेक्युलर कंट्री. सेक्युलर कंट्री का मतलब क्या होता है, दैट वी डू नॉट हैव अ स्टेट रिलीजन, है ना. अ लॉट ऑफ अस हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट पाकिस्तान इज फॉर मुस्लिम्स एंड इंडिया इज फॉर हिंदूज. दैट इज नॉट ट्रू. Pakistan is for Muslims and India is for everybody. That is the definition given in the constitution. I mean the drafters of the constitution. Okay. And उसके अलावा हमने जो 23 and 24 पढ़ा, that talked about right against exploitation. So that's it from my end in this session. I hope it was useful and you guys were able to understand it also. So we'll try to keep this series as crisp as possible.
अगले सेशन में आपको मैं सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा विच इज रिट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर हमें 5 फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, these 5 fundamental rights will have absolutely no meaning if you don't understand RITs. So I'll discuss that in the next session. Stay tuned till then and keep following this. You can also, as I told you, visit our website, which is 12minutes2clad.com. You can also download our app, which is 12 minutes to clad from Play Store. Thank you so much, guys. Keep watching us, and we hope that you like it. If there are any doubts, you can always mention in the comment box. And if there any kind of feedback, positive or negative, that you would like to give, always mention in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. Thank you. Keep smiling. We'll come up with a new episode very soon.